ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। आचार्य भगवान समय का अर्थ करते हैं जीव, और समयसार का अर्थ करते हैं आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। जीव अनेकांश स्वरूप है, इसलिए जीव को परमार्थ नहीं से भी आप देख सकते हो, व्यवहार नहीं से भी देख सकते हो, लेकिन परमार्थ नहीं से जीव का स्वरूप त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव स्वरूप है। व्यवहार नहीं से जीव का स्वरूप भेद रूप है। भेद में 46 गाथा में पर्याय भेद लिया है। पर्याय भेद में ये लिया कि असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय का अर्थ है जीव शरीर से बंधा हुआ है, तो जीव शरीर से बंधा हुआ है तब उसकी बंध अवस्था है। तो बंध अवस्था वो भी जीव की है और व्यवहार नहीं का विषय है। बंध में से मुक्त होवे, मोक्ष की प्राप्ति करे, तो मोक्ष भी पर्याय है और मोक्ष की पर्याय भी व्यवहार नहीं का विषय है। तो जीव स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध और पर्याय जीव की पर्याय की ओर से देखा जाए तो उसमें बंध मोक्ष अवस्था है।
जब जीव शरीर से बंधा हुआ है, ऐसे जीव को किसी ने मार दिया तो बंद अवस्था रूप जीव को दुख का वेदन होता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा एकांत करे कि परमार्थ नहीं से तो जीव परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध है, पर्याय से रहित है। इसलिए वो पर्याय से रहित है तो इंद्रिय सुख दुख से रहित है, और इंद्रिय सुख दुख से रहित है, और आत्मा तो कभी मरता नहीं है। तो चार गति में रहे हुए जीव उसको मारने में पाप तो लगता नहीं है। ऐसी अगर स्वच्छंदता करे तो ज्ञानी ने ऐसी स्वच्छंदता का त्याग कराया है। ऐसे एकांत जीवों को, ऐसे एकांत मान्यता वाले जीवों को, ऐसे एकांत मिथ्या दृष्टि को वस्तु का स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करा के, स्वच्छंदता का त्याग करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है। फिर से गुजराती में, आचार्य भगवान માંગલિક કરીને પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હું સમયસારને કહીશ। સમયનો એક અર્થ જીવ કર્યો છે। સમયસારનો અર્થ આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ કર્યો છે। આત્મા અનેકાંત સ્વરૂપ છે, એટલે કે આત્મામાં અનંત ધર્મ હોવાથી આત્માના સ્વરૂપને અનંત પ્રકારે જોઈ શકાય છે। અનંત પ્રકારને બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે તો એક શુદ્ધ નયની દ્રષ્ટિથી આત્માને જોવું અને બીજી વ્યવહાર નયથી આત્માના સ્વરૂપને જોવું। શુદ્ધ નયથી આત્માને જોઈએ તો આત્મા ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે અને આત્માના ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવમાં પર્યાય નથી, પર્યાય રહિત છે। તો આત્માને શુદ્ધ નયથી જોયો। હવે વ્યવહાર નયથી જોવામાં આવે તો આત્મા પરિણમનશીલ છે। આત્મામાં ભેદ છે, ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ। એમાં 46 ગાથામાં
પર્યાયના ભેદથી વાત કરી છે. 4 ગતિમાં રહેલા જીવો અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાયવાળા છે. એટલે કે 4 ગતિના જીવો શરીરથી બંધાયેલા છે. જ્યારે 4 ગતિમાં પરિભ્રમણ કરતો જીવ શરીર સાથે બંધાયેલો છે, ત્યારે એવા જીવને મસળવામાં આવે તો, એવા જીવોને મારવામાં આવે તો, એવા જીવને પર્યાયમાં ઇન્દ્રિય દુઃખનું વેદન થાય છે. પણ અજ્ઞાની જીવ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ, એકાંત દ્રષ્ટિવાળો જીવ એમ માને કે શુદ્ધ નહીંથી તો આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છે, એ તો પર્યાય રહિત છે, ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ તો પર્યાય છે, એ પર્યાયથી રહિત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એ જીવ છે. તો પછી જીવને મારી નાખો તો એ તો પર્યાય રહિત છે, તો એને દુઃખ ક્યાં થવાનું છે? તો કે શુદ્ધ નહીંથી આત્મા ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય રહિત છે. વાત તારી સાચી છે, પણ એ તો એક શુદ્ધ નહીંનો વિષય થયો, પણ વ્યવહાર નહીંનો વિષય પણ છે ખરો. જો તું એને ન સ્વીકાર તો પુણ્ય પાપ ઉત્પન્ન જ ન થાય, બંધ મોક્ષ અવસ્થા ઉત્પન્ન જ ન થાય. સ્વભાવ વિભાવ રૂપની પર્યાય એનો વિષય જ ન રહે. જે જીવ શરીરથી બંધાયેલો 4 ગતિમાં છે, એને એકાંત મિથ્યા દ્રષ્ટિ એમ માને છે કે એવા જીવને મારવાથી શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત તો પર્યાય રહિત છે, માટે એ જીવને સુખ દુઃખનું વેદન નથી, એવું માને છે. માટે જીવને મસળી નાખવાથી કે મારી નાખવાથી દુઃખ નહીં થાય, તો કે એ તો સ્વચ્છંદપણું છે. તારે બે નહીં છે અને બે નહીંનો વિષય છે. એ વાત જેમ છે તેમ સ્વીકારીને અનેકાંત આત્માનું સ્વરૂપ સ્વીકારીને એમાંથી સમ્યક એકાંત કરીને સમ્યક એકાંતના વિષયભૂત આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું ગ્રહણ કરીને બંધને ત્યાગીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. આ વિષય 46 गाथा का था. अब गाथा 47. अब देखो, अब शिष्य प्रश्न करता है कि ये व्यवहार नहीं, क्या कौन से दृष्टांत से प्रवृत्त होता है? उसका उत्तर कहते हैं
शिष्य का प्रश्न है कि आपने जीव में परमार्थ नहीं और व्यवहार नहीं की बात समझाई, वो बात को दृढ़ करने के लिए आप हमें All participants are muted and they can unmute themselves. आप हमें दृष्टांत से समझाइए। तो आचार्य भगवान 47 गाथा में दृष्टांत देंगे। वो दृष्टांत को 48 गाथा में सिद्धांत से बताएंगे। तो देखो 48 गाथा, उसका शब्द क्या है? निर्गमनया नृपनो थयो निर्देश सैन्य समूहने व्यवहारथी कहेवाय ए पण भूपएમાં એક છે ત્યમ સર્વ અધ્યવસાનયાદિ અન્ય ભાવો જીવ છે સૂત્રે કર્યો વ્યવહાર પણ ત્યાં જીવ નિશ્ચય એક છે। નૃપ એટલે રાજા, जो गाथार्थ, जिस प्रकार राजा सेना के साथ निकला, वहाँ ये राजा निकला है, ऐसा ये सेना के समुदाय को कहने में आता है। वो व्यवहार से कहने में आता है। वो सेना में वास्तविकपने यानी यथार्थपने राजा तो एक ही निकला है। क्या कहा? पहले दृष्टांत समझ ले, बाद में सिद्धांत की बात बताएंगे। कि कोई 5 योजन में सेना फैल गई, तो लोग कहते हैं कि ये रास्ते पर से राजा निकला। राजा ये पूरे क्षेत्र में फैल गया है। तो कि वास्तव में तो सेना फैली हुई है 5 योजन में। मान लो कि इसमें लाखों करोड़ों सेना के सभ्य है, लेकिन उसमें राजा तो एक है। फिर भी पूरी सेना को राजा कहने में आया,
तो एक राजा को पूरी सेना के ना ये व्यवहार है। ऐसा व्यवहार क्यों है? तो कि राजा के हुक्म से सेना निकली है, इसलिए पूरी सेना को राजा कहने में आया। लेकिन पूरी सेना के सभ्य, एक एक सभ्य राजा नहीं है, वो तो सेनापति सैनिक है। फिर भी सेना के समुदाय को राजा कहने का व्यवहार है। फिर से गुजराती में, રસ્તા ઉપરથી આખી સેના નીકળે અને એમાં 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 સૈનિકો હોય તો લોકો એમ બોલે કે આ રસ્તા ઉપર રાજા નીકળ્યો છે। તો કે 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 સૈનિકોમાં એની સાથે રાજા તો એક જ છે। તેમ છતાં આખી સેનાના સમુદાયને રાજા કેવો એવો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે। એવો વ્યવહાર કેમ કર્યો? તો કે રાજાના હુકમથી આ સેના નીકળી છે, માટે રાજા નીકળ્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે। ખરેખર આખી સેનામાં રાજા તો એક છે। અને એક રાજા ખરેખર 5 યોજનમાં ફેલાયેલો નથી। એ તો લાખો સૈનિકો 5 યોજનના ફેલાવમાં ફેલાઈ ગયા છે। આ દ્રષ્ટાંત થયો। હવે સિદ્ધાંત કહે છે, ઉસી પ્રકાર તેવી જ રીતે એટલે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે અધ્યવસાન આદિ અધ્યવસાનમાં અનાદિથી વર્તમાન કાળ સુધીના બધા વિભાવ પરિણામનો સમાવેશ થઈ ગયો। વિભાવ પરિણામનો સમાવેશ થઈ ગયો। હવે વિભાવ પરિણામ છે અધ્યવસાન આદિ, તો અધ્યવસાનના પરિણામ અનાદિથી આજ સુધીના અનંત છે। એના પ્રકાર કેટલા? તો કે અનંત। હવે એ અનંત પરિણામ એને જીવ કહે છે। તો કે ખરેખર તો અનંત અધ્યવસાનના પરિણામમાં પરમાર્થથી જોવા જઈએ તો જીવ તો એક જ છે। જીવ કોને કહ્યો તો કે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જે જીવનું સ્વરૂપ છે
એને જીવ કહ્યો હતો. તો આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને જીવ કહ્યો હતો. તો શુદ્ધનીના વિષયભૂત જીવ તો એક જ છે. અધ્યવસાન છે એ તો વિભાવ પરિણામ છે, અને એ વિભાવ પરિણામ તો વ્યવહારનીનો વિષય છે, અને વ્યવહારનીના વિષયભૂત અધ્યવસાનના પરિણામ તો અનંત છે. ફરીવાર શાંતિથી સાંભળવું. સિદ્ધાંતમાં આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે અમે પૂર્વગાથાઓમાં નહીં બે બતાવી, એક શુદ્ધ નહીં, બીજી વ્યવહાર નહીં. શુદ્ધ નહીંનો વિષય ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ એ તો એક જ છે. એ તો એક જ છે, પણ વ્યવહારનીનો વિષય પર્યાયમાં અહીંયા અધ્યવસાનની પર્યાય લીધી. અધ્યવસાન કી પર્યાય, पर अध्यवसान की पर्याय तो अनंत प्रकारनी है. ये अनंत प्रकारनी पर्याय में शुद्ध नहींना विषयभूत जीव तो एक ज छे. आखी सेना में राजा तो एक ज छे, छतां अनंत सैनिकों एना समुदाय ने राजा कहेवानो व्यवहार छे. एम अध्यवसानो तो अनंत प्रकारना छे, पण एमां तो त्रिकाळ शुद्ध जीव तो मात्र एक ज छे. तो अध्यवसान ने जीव केवो एवो व्यवहार करवामां आवे छे, एवुं व्यवहारथी कहेवामां आवे छे. अध्यवसान ने तो पूर्वगाथामां अजीव कह्युं हतुं. अध्यवसान ने केवा कह्या हता? पूतगलना परिणाम. एने तो अजीव कह्यो. अजीव केम कह्यो? तो कि अहींया जीव अजीव अधिकार चाले छे, अने जीव अजीव अधिकारनुं प्रयोजन जीव अजीव वच्चे भेदरूप श्रद्धान करावीने सम्यक दर्शननी प्राप्ति करवी छे. तो एक तरफ जीव छे, बीजी तरफ अजीव छे.
બંને વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાથી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. फिर से हिंदी में जरा ध्यान से सुनना. आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया कि रास्ता पर राजा फैल गया है. रास्ते पर राजा निकला है. वहाँ राजा का अर्थ क्या किया कि निकला है तो सैन्य, और सैन्य तो सैनिकों का झुंड है, और उसमें लाखों सैनिकों है. लाखों सैनिकों में राजा तो सिर्फ एक है. फिर भी कहने का व्यवहार ऐसा है कि ये मार्ग पर से राजा निकला. ये था दृष्टांत. अब सिद्धांत. पूर्व गाथाओं में आचार्य भगवान ने 2 नई का प्रयोग किया था. एक शुद्ध नई का, दूसरा व्यवहार नई का. शुद्ध नई के विषयभूत आत्मा वो तो त्रिकाल परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला शुद्ध जीव है. तो शुद्ध नहीं के विषयभूत जीव तो एक ही है. जो शुद्ध नहीं के विषयभूत जीव है, त्रिकाल है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, एकत्व स्वरूप है, उसकी किसी ने उत्पत्ति की नहीं है. ऐसा जीव का एक त्रिकाल स्वरूप है. उसको समयसार में आचार्य भगवान जीव कहते हैं. उसको प्रयोजनवश जीव कहते हैं. प्रयोजनवश जीव क्यों कहा कि अनादिकाल से अज्ञानी जीव शुद्धने के विषयभूत जीव को कभी उसका परिचय नहीं किया, कभी उसकी बात नहीं सुनी, कभी उसके स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान किया, कि कभी भी उसकी अनुभूति नहीं की. वो दिखाने का प्रयोजन क्या था? तो कि शुद्धने के विषयभूत आत्मा उसका श्रद्धा ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं होता. तो जैसी तरह अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है, दूसरा कुछ नहीं दिखता, उसी प्रकार
सम्यक दृष्टि को सिर्फ त्रिकाल शुद्धात्मा दृष्टि में आता है और उसको जीव कहते हैं। तो शुद्ध नहीं से जीव का स्वरूप तो एक है, लेकिन व्यवहार नहीं से देखा जाए तो जीव उसकी पर्याय, उसका विषय पर्याय है, पर्याय भेद है। और अध्यवसान तो अशुद्ध पर्याय है। और अध्यवसान वाली पर्याय अनादि से आज तक अज्ञानी के स्वक्षेत्र में उत्पन्न होती है। तो ऐसे अनंत प्रकार की अध्यवसान रूप पर्याय उसमें छुपा हुआ सिर्फ एक जीव परिपूर्ण शुद्ध है। तो शुद्धनी का विषय एक और व्यवहारनी का विषय अनेक। पहले इतनी बात समझ में आती है कि सेना में एक राजा है। अध्यवसान के अनंत परिणाम में एक त्रिकाल शुद्धात्मा है। फिर भी सेना पर राजा है ऐसा आरोप आता है। अनंत अध्यवसान में त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध जीव तो एक है, फिर भी अनंत प्रकार का अध्यवसान को जीव के ना ऐसा आरोप जीव पर आता है। तो आचार्य भगवान ने जीव में से दो बात बताई कि त्रिकाल शुद्धात्मा भी है और अध्यवसान विद्यमान भी है। त्रिकाल शुद्धात्मा स्वभाव है, अध्यवसान विभाव है। स्वभाव विभाव के बीच में भेदरूप श्रद्धान करके विभाव का अध्यवसान का लक्ष्य छोड़ के ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, ये उद्देश्य है। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो फिर से पढ़ते हैं व्याथार्थ, चौथी लाइन के आखिरी शब्द है, उसी प्रकार ही, यानी दृष्टांत अनुसार ही अध्यवसान यानी मोह राग द्वेष, अध्यवसान आदि अन्य भावों को अध्यवसान को अन्य भाव कहा। क्यों?
कि आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव से भिन्न है। एक कारण। दूसरा कारण, अध्यवसान उत्पन्न हुआ वो कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न हुआ। तो अध्यवसान निमित्त में जुड़ने से उत्पन्न हुआ तो नैमित्तिक परिणाम है। वो आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको अन्य भाव कहा। तो अध्यवसान आदि अन्य भावों को ये जीव है ऐसा परमागम में कहा है। तो अध्यवसानों को जीव कहा, वो शुद्ध नहीं से कहा कि व्यवहार नहीं से कहा? तो क्या कहा है व्यवहार नहीं से, तो उसको शुद्ध नहीं का कथन मत मानना। तो अध्यवसान आदि अन्य भावों को ये जीव है ऐसा परमागम में कहा है। वो व्यवहार किया है, यानी व्यवहार से कहा है। अध्यवसान को जीव के ना, वो व्यवहार नहीं का कथन है। और व्यवहार नहीं का कथन सत्यार्थ है कि असत्यार्थ है? तो क्या असत्यार्थ है? भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? तो क्या अभूतार्थ है? 11वीं गाथा में आया था। ये तो 48 गाथा चलती है। तो जो गाथा चलती है वो बात याद रहती है, और 1 से 47 गाथा में क्या कहा वो हम भूल जाते हैं। तो भूल जाएंगे तो शास्त्र का सातत्य नहीं रहता। शास्त्र का सातत्य नहीं रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो सही अर्थ निकलेगा नहीं। तो देखो, वो व्यवहार किया है निश्चय से। निश्चय से का अर्थ शुद्ध नहीं से। निश्चय का अर्थ शुद्ध नहीं से, यानी स्वभाव से। सोचने में आए तो अध्यवसान अनादि से आज तक अनंत हुए। उसको व्यवहार कहा तो प्रश्न अंदर में से आना चाहिए कि जीव अनंत प्रकार के अध्यवसान स्वरूप है व्यवहार से, तो जीव निश्चय से कैसा होना चाहिए? तो आचार्य भगवान ने कहा निश्चय से सोचा जाए तो उसमें यानी
अनंत अध्यवसान में जीव तो एक ही है। जो एक ही जीव है वो कौन सा जीव? तो के पर्याय से रहित, शुद्ध नहीं के विषयभूत, तो शुद्ध नहीं। शुद्ध नहीं का विषय तो सिर्फ एक ही है, अनंत नहीं है। व्यवहार नहीं का विषय अनंत है, शुद्ध नहीं का विषय अनंत गुणात्मक आत्मा, अनंत शक्ति का पीड आत्मा, अनंत धर्मात्मक आत्मा, विनायक, वो तो एक ही है। तो अनंत अध्यवसान वहाँ उपयोग रखेगा तो अध्यवसान तो पर्याय है। अध्यवसान तो क्या है? वो तो पर्याय है, और पर्याय तो क्षणिक है, अनित्य है, एक समय की है। उसका ध्यान कैसे हो सकता है? तुझे जिसका लक्ष्य करना है, तुझे जिसका ध्यान करना है, वो पदार्थ एक है। देखो, द्रव्य स्वभाव त्रिकाल, अध्यवसान क्षणिक, त्रिकाल स्वभाव शुद्ध, अध्यवसान रूप पर्याय अशुद्ध। त्रिकाल शुद्ध स्वभाव अभेद, अध्यवसान भेद है। त्रिकाल शुद्ध स्वभाव शुद्ध नहीं का विषय, अध्यवसान व्यवहार नहीं का विषय। त्रिकाल शुद्ध स्वभाव त्रिकाल होने के कारण, स्थिर होने के कारण उसका ध्यान हो सकता है। अध्यवसान अस्थिर होने के कारण, अशुद्ध होने के कारण, क्षणिक होने के कारण, अनित्य होने के कारण उसका ध्यान हो नहीं सकता। त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करने से निर्विकल्पता उत्पन्न होती है, और अध्यवसान का लक्ष्य करने से विकल्प राग द्वेष उत्पन्न होता है। अब टीका। जेम आ राजा 5 યોજનના ફેલાવથી નીકળી રહ્યો છે, એમ કહેવું તે એક રાજાનું 5 યોજનમાં ફેલાવવું અશક્ય હોવાથી વ્યવહારી લોકોનો સેના સમુદાયમાં રાજારૂપ કેવારૂપ વ્યવહાર છે। શું કહ્યું? કે એક રાજા
5 योजन में फैल जाना। 5 યોજનમાં ફેલાઈ જવું એમ કહેવું તે એક રાજાનું 5 યોજનમાં ફેલાવવું અશક્ય હોવાથી રાજા કંઈ 5 યોજનમાં ફેલાય નહીં, એ તો અશક્ય છે. ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ અધ્યવસાનમાં ફેલાય નહીં, એ તો અશક્ય છે. વ્યવહારી લોકોનો સેના સમુદાયમાં રાજા કેવા રૂપ વ્યવહાર છે શું કહ્યું? વ્યવહારી લોકોનો સેના સમુદાયમાં રાજા ફેલાયો છે એવો કહેવાનો વ્યવહાર છે. ખરેખર એ સાચું નથી. વ્યવહારને 11 ગાથામાં અસત્યાર્થ કયો હતો, અભૂતાર્થ કયો હતો. અસત્યાર્થ કેમ કયો? તો કે ખરેખર પર્યાય નથી, તો કે પર્યાય તો છે, પણ તું આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને જો ત્યારે પર્યાય ગૌણ થઈ ગઈ છે. તો વ્યવહારનો વિષય તો ગૌણ કરવા જેવો છે. એને તું ગૌણ કરીશ તો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ મુખ્ય થશે. સૈનિકોને ગૌણ કરીશ તો રાજા તારી દ્રષ્ટિમાં આવશે. અધ્યવસાનોને ગૌણ કરીશ તો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ દ્રષ્ટિમાં આવશે, મુખ્ય થશે. વ્યવહાર છે કે છે જ નહીં? છે કરો, છે ખરો, પણ મુખ્ય કરવા જેવો છે કે ગૌણ કરવા જેવો? તો કે ગૌણ કરવા જેવો. વ્યવહારને ગૌણ કરીશ તો મુખ્ય કોણ થશે? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા. મુખ્ય કરવું એટલે શું? ગૌણ કરવું એટલે શું? કે આત્માના સ્વભાવનો મહિમા કરીશ તો પર્યાયનો મહિમા ગૌણ થશે, એટલે કે પર્યાય પ્રત્યે ઉદાસીનતા આવી જતા આત્મ સ્વભાવ ગ્રહણ થઈ જશે. જે સ્વભાવમાંથી સાદી અનંતકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય આવે એ સ્વભાવ મહિમાવન છે કે અધ્યવસાનની એક પર્યાયમાંથી બીજી પર્યાય પણ પ્રગટ થઈ શકતી નથી એવો અધ્યવસાન કે વિભાવ વિકાર છે,
એનો મહિમા છે. મહિમા કોનો? મોહ રાગ દ્વેષનો મહિમા છે, અધ્યવસાનનો મહિમા છે, ભગવાનની ભક્તિનો મહિમા છે કે ભગવાનના શુદ્ધ સ્વભાવનો મહિમા છે? અધ્યવસાનનો મહિમા છે કે એમાં છુપાયેલા શુદ્ધ સ્વભાવનો મહિમા છે? અધ્યવસાન વિભાવ છે તો વિભાવનો મહિમા છે કે સ્વભાવનો મહિમા છે? તો સ્વભાવનો મહિમા કરતા વ્યવહારના વિષયભૂત અધ્યવસાનની પર્યાય ગૌણ થઈ જતા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા અનુભવમાં આવશે. શું કહ્યું ટીકામાં? फिर से जिस प्रकार राजा 5 योजन से फैलाव से निकल रहा है, ऐसा कहने में आता है. ऐसा कहना वो एक राजा का 5 योजन में फैलाना अशक्य होने से व्यवहारी लोगों का सेना समुदाय में राजा रूप कहना व्यवहार है. ऐसा व्यवहार करने में आता है, लेकिन व्यवहार मुख्य है कि गौण है? तो कि गौण है. व्यवहार सत्यार्थ है कि असत्यार्थ है? तो कि असत्यार्थ है. व्यवहार भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? तो कि अभूतार्थ है. व्यवहार को मुख्य करने जैसा है कि गौण करने जैसा है? तो कि गौण करने जैसा है. ऐसा जो व्यवहार किया, लेकिन परमार्थ से, परमार्थ का सत्य से वास्तविकता से तो राजा एक ही है, और एक राजा 5 योजन में फैलाव कर सकता नहीं है. समय हुआ है, कल आगे चलेगा. वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान की जय. महाविद्य क्षेत्र में साक्षात विराजमान अनंत चतुष्टय के धारक, दिव्य ध्वनि के दातार, शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय. कलिकाल सर्वज्ञ केवल ज्ञान की तड़ेटी में बैठे हुए प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानधारी
महासमर्थाचार्य भगवत श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय। वर्तमान काल में स्वभाव विभाव के बीच में वेदरूप श्रद्धान कराने वाले तीर्थ के नायक, तीर्थ के प्रवर्तक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय। पूज्य गुरुदेव का तीर्थंकर के रूप में महिमा दिखाने वाले स्वानुभव युक्त जाति स्मरण ज्ञान युक्त प्रशम मूर्ति भगवती मात की जय हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त रूप अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि स्वर्णपुरी धाम की जय हो। स्वर्णपुरी धाम में पधारने वाले जम्बू दीपस्य सर्वे जिनेन्द्र भगवान की जय हो। चौबीस तीर्थंकर पूर्वे मोक्ष पाने वाले श्री बाहुबली भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर पूर्व मोक्ष पर जाने वाले बाहुबली भगवान की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।